फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑन आवर सीरीज फॉर लीगल स्टडीज क्लास 12th। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इफ वी गो बैक इनटू हिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लिविंग। हमेशा से हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स को बहुत वैल्यू किया है और हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे रिचुअल्स हैं, उसके हिसाब से वी हैव ऑलवेज ट्रीटेड ईच एंड एवरी क्रिएचर एज अ क्रिएचर क्रिएटेड बाय द गॉड, और हमने सबको समान माना है। अगर हम उसको लीगल स्ट्रक्चर में देखें तो विल हैव टू गो बैक टू द हिस्ट्री एंड इन 1215 मैग्ना कार्टा एक लॉ बना था अमेरिका में, जिसमें उन्होंने वेस्टर्न पॉलिटिक्स और जो पॉलिटिशियंस थे, जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने ह्यूमन राइट्स को एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लाने की कोशिश की थी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंग्लिश बिल्स ऑफ राइट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1689। ये जो इंग्लिश बिल ऑफ जो बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1689 था, दिस वाज इन एग्रीमेंट बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंटेरियन। उस समय के हिसाब से किंग वाज द सुप्रीम पावर और parliamentarians were not having adequate freedom or independence to work freely, and at the same point of time वहाँ पर उस समय में बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशन होते थे, जिसमें कि क्राउन अपनी मर्जी से जब चाहे जैसा चाहे टैक्सेशन लगा देते थे विदाउट एनी फ्रीडम और विदाउट एनी नेचुरल जस्टिस। अपने मर्जी से बायस्ड डिसीजन होते थे। तो दैट वाज एन अटेम्प्ट टू recognize human rights, and accordingly there was an agreement between crown and the parliamentarian। थोड़ा और आगे चलते हैं हम अपने हिस्ट्री में और आगे की तरफ आते हैं। तो 1776 के अंदर जब यूनाइटेड नेशन आज़ाद हुआ, व्हेन अमेरिकन गॉट इंडिपेंडेंस, दे हैड एक्सेप्टेड, दे हैव adopted the American Charter of Independence, and according to that American Charter of Independence, they had recognized certain basic right of equality, right of life, right of right of living to its citizen। तो उन्होंने वो प्रिविलेज कंसिडर की अपने सभी सिटीजन्स के लिए, जिसमें उन्होंने ये सोचा कि सबके पास दे शुड बी हैविंग अ पावर, राइट टू लिव हैप्पीली एंड राइट टू pursue the happiness। The same charter was adopted by French after French Revolution in 1789, and the charter they had accepted was called as French Declaration of Right of Men and its Citizens। And in that charter itself, they had in the same line as that of American Charter of Independence, they had acknowledged the basic rights, basic human rights, which were to be made available to its citizens, like right of liberty, right of property, right of security, and the resistance to oppression। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री हो गई कि हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे हमारी हिस्ट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स को वैल्यू मिलती चली गई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। नाउ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, after a mass level of massacre, there was a there was an organization called United Nations which came into existence, or after seeing the scale of massacre, it was a unanimous consent amongst all the member countries that the human rights should be acknowledged, and all the member signatories of United Nations should adopt certain basic laws so as to confirm the human rights availability to its citizen and the public in general। And accordingly, in 1948, United Nations had come out with a Universal Declaration of Human Rights called UDHR, and that was a standard principle, standard guiding principle, regarding in which they had considered the freedom of speech, freedom of life, freedom of assembly, freedom of conscience। they had a vision in their mind that nobody should be prohibited or discriminated on the basis of their religion, their caste, their sex, their creed। So they had come out with a standard principle, and all the member countries were supposed to adopt those
standard principle into their own countries within a stipulated time frame or stipulated guideline. So on the basis of this standard charter of or the declaration of human rights, subsequently United Nations came out with various conventions, and those conventions were the guiding those conventions were to act as a guiding principle for the member countries to adopt those laws into their own countries. And the prominent conventions were the Convention on right civil and political right 1976, the United Nations Convention on economic, social and political rights in 1976, the right of child in 1990, the right the declaration on elimination of all forms of discrimination against women in 1979. And immediately after second world war, the major problem which the world was facing was the problem of refugees. To tackle that, United Nations came out with the United Nations Convention on Right of Refugees in 1954. So this is a brief idea about how the human rights have got placed in the on the World Forum. Now, as this subject demands, we will quickly move on to the human rights in India. In India, human rights have been embedded in the Constitution of India. तो इस सब्जेक्ट के अंदर, और द कॉन्स्टिट्यूशन इज, इफ वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा स्टेच्यूट और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ भी एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है. इंडिया के लॉ के अंदर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ह्यूमन राइट्स की एक्नॉलेजमेंट दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम राइट फ्रॉम द प्रीएम्बल. हमारा प्रीएम्बल जब हम शुरू करते हैं, जहाँ पर हम ये आता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved to make our country as a secular, social, sovereign, democratic republic. So by the use of these words, our lawmakers have ensured that all people in India should get the justice, should get the freedom, should get the right of fraternity, and the democratic setup should be made available to all the citizens of India. And apart from preamble, chapter 3 consists or deals with the fundamental rights exclusively. Apart from that, part 4 deals with directive principle. Those are the guiding principle on the basis of which the government should work. And then part 4a deals with the fundamental duties. Now we quickly have a look on the structure of the fundamental rights which have been provided in part 3 of Constitution of India. In part 3, article 12 to article 35 deals with fundamental rights. Article 12 and 13 describes the definition of state as well and the law respectively. Then from article 14 onwards, the fundamental rights have been categorized into 6 basic categories. Article 32 deals with constitutional remedies, and article 33 to 35 deals with the general provision related to the fundamental rights. So accordingly, article 40, from article 14 till article 30, our fundamental rights are described. Article 31 was earlier categorized as a fundamental right, that was the right of property, but that was subsequently denied or removed after the 44th constitutional amendment. So let us study these all these articles one by one. Article 12 deals with the state, or before that let us have a basic salient feature of our fundamental rights. If we look at the categories of fundamental rights, article 15, article 16, article 19, article 30, article 15, 16, 19 and 30, these are the fundamental rights which have been guaranteed to our citizens only. These
rights are only available to the citizens of India. Then Article 14, Article 15, Article 14, Article 20, Article 21, 22, 23, 25, 27, and 28. These are the rights which have been provided to all persons, including citizens of India, as well as any other person or a foreigner who is coming into India and is present in India will be having these fundamental rights available with him. The third category is that Article 15, Article 17, Article 18, Article 20, and Article 24. These are provided in the fundamental rights in the form of prohibitions, in the form of absolute limitations instead of fundamental rights as such. These are described in the form of prohibitions or limitations. Now let us study each and every article one by one. आर्टिकल 12 डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. हमारे जब जैसे अभी अब इस चैप्टर में आप आगे बढ़ते जाएंगे बहुत जगहों में स्टेट लिखा आएगा. वैसे भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन बाय एंड लार्ज, अगर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई भी मैटर अगर अराइज होता है तो स्टेट इज़ ऑलवेज वन ऑफ द पार्टी इनटू दैट. दो इंडिविजुअल्स के बीच में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन का या फंडामेंटल के इन्वोक कराने का मैटर जनरली अराइज नहीं होता है. So let us first understand what a state is. State as defined in the article 12 is government or parliament of India. So when we talk about parliament of India, it means central government. The other category is government and state legislature. When we talk about state legislature, here the government means state government. So both central government and state government are included in the definition of state. Then all the local or other authorities. So in this category there are subcategories like all local and other authorities means local authority would include all kind of municipalities, panchayats and local bodies. Apart from that, other authorities would include any authority which is located within the territory of India. क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक उसका एरिया है उनकी एप्लीकेबिलिटी का, दैट इज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो एनी सच अथॉरिटी विच इज लोकेटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विल बी ट्रीटेड एज स्टेट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एनी अथॉरिटी विच इज on which central government is having control, the government of India is having control, such authorities will be considered as state for the purpose of Article 12. Now Article 13 deals with law. Law क्या है? Law means law would include any ordinance, any order, any bylaw, any rule, any regulation, any notification, any custom or usage in territory of India. तो कस्टम्स भी इसमें आ गए. हमारे जो पुराने कस्टम्स हैं जो कि टाइम इमेमोरियल से चले आ रहे हैं, एंड दोज हैव बीन एक्सेप्टेड एंड अडॉप्टेड बाय द लार्ज सेक्ट ऑफ सोसाइटी. सो दोज हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ लॉ. अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉ की दो कैटेगरीज हैं. जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ 1947 में, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, देयर वर सर्टेन लॉज विच वर ऑलरेडी एप्लीकेबल और दोज वर रनिंग इनटू द कंट्री. So those laws were known as pre-independence laws or the already existing law. So these are defined under Article 13(1). And there were certain laws which were brought into existence after the independence. Such laws were called as future laws or the post-constitutional laws. तो हमारे लॉ के अंदर इन लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली डिमार्केट किया गया है कि कुछ लॉज जो उस समय जैसे जो चलते आ रहे थे, जो उस समय एप्लीकेबल थे, तो उनमें से कुछ पोर्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो कुछ तो लॉज एज इट इज़ रहने दिए गए, एज इट इज़ चालू हैं, आज की डेट में भी वो एप्लीकेबल हैं. लेकिन कुछ लॉज इररिलेवेंट हो गए या कुछ के अंदर चेंजेस किया गया. सो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के अंदर जो पोर्शन एप्लीकेबल नहीं था, विच एवर पार्ट ऑफ द लॉ विच बिकेम
इनएप्लीकेबल, और जहाँ जिसको सीज कर दिया गया वो लॉज को हटा के बाकी लॉज एप्लीकेबल रह गए। सिमिलरली पोस्ट फैक्टो लॉ के अंदर ये एक फ्रीडम, और ये कह लीजिए कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है टू ए कॉमन मैन, दैट इफ अ पर्सन हैज कमिटेड एनी एक्ट which at the time of committing that act was not categorized under any act any offense, लेकिन सब्सिक्वेंटली कोई ऐसा एक्ट बनता है जिसमें कि वो वाला एक्ट जो उस आदमी ने जो काम किया, दैट हिज डीड बिकेम एन ऑफेंस, तो उसको फ्यूचर के लॉ के बेसिस पे उसके पास्ट एक्ट को पनिश नहीं किया जा सकता। सो दीज आर दी बेसिक प्रिंसिपल्स on the basis of law was defined. Now let us understand the all the 6 categories of fundamental rights which have been given to us by the Constitution of India. First is right of equality, and this right of equality constitutes from Article 14 till Article 18. Article 14 एक basic framework देता है about the law of right of equality, and उसके अंदर वो acknowledge करते हैं that each and every person or in India will be having equal right before law and equal protection of law. तो यहाँ पर उनको किसी भी तरीके, कोई भी दो आदमियों को, चाहे किसी ने कोई ऑफेंस किया है और कोई ऐसा आदमी who has been aggrieved by such an offense, both of them will be treated equal before the court of law. दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एंड दे विल बी गिवन फ्री अपॉर्चुनिटी to present their case. So this is the crux of Article 14. Now Article 15 prohibits the state from discriminating any of its citizens on the ground of religion, race, sex, caste, place of birth. तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, एंड स्पेशली स्टेट इज प्रोहिबिटेड, स्टेट को खास मना है। इसीलिए आप देखते होंगे कई बार ऐसे केसेस होते हैं जब कहीं पर किसी ने कोई क्राइम किया एंड ही कैन नॉट अफोर्ड टू हैव ए लॉयर, देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड ए लॉयर फॉर सच ए पर्सन टू डिफेंड हिमसेल्फ। तो उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना आर्टिकल 15 के हिसाब से इट हैज़ बाइंडेड द स्टेट। ठीक है, इसके अलावा एक तो ये होगा कि उनको किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ या लॉ के सामने, एंड सेकेंडली नो रिस्ट्रिक्शन शैल बी प्लेस्ड ऑन ऑल दीज बेसिस, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, creed or place of birth. No restriction shall be placed to access any shop, any public place of entertainment. तो किसी जगह पर उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लाइक ऐसा नहीं है कि अगर एक सिनेमा हॉल है तो वहाँ पर या इसी तरीके से कोई पब्लिक वेल का यूज़ करना, पब्लिक प्लेसेस का, पब्लिक रिसोर्ट्स का, किसी भी जगह पर उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। कोई अगर पिक्चर हॉल है, कोई मॉल है, तो वहाँ पर सभी जा सकते हैं। There cannot be any discrimination on any of these grounds. This has been ensured by Article 15. Now Article 16 gives equal opportunity in the matter of public employment. तो जो भी गवर्नमेंट जैसे वैकेंसीज निकलती है तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ रिजर्वेशन कुछ उसमें दिया है कि जैसे अगर कोई स्पेसिफिकली अगर कोई एक ऐसी वैकेंसी निकलती है जहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरीके का फिक्स है, तो वो गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सेम क्राइटेरिया के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, एंड ऑल पर्सन्स वुड सेटिस्फाइंग दोज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वुड बी फ्री टू टेक पार्ट इन टू सच कॉम्पिटिशन, और गवर्नमेंट उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। तो आर्टिकल 17 इसके बाद आता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसको छुआछूत बोलते हैं। तो जैसे आज़ादी से पहले एज यू ऑल आर अवेयर कि शुरू से पहले से हमारे समाज के अंदर एक अनटचेबिलिटी का एक बहुत समय तक रहा था। ठीक है, एक मिनेंस थी। टू अवॉइड इट
कॉन्स्टिट्यूशन हैज ensured कि आर्टिकल 17 के थ्रू दैट देयर शुड नॉट बी एनी untouchability kind of a thing remain in this society. So this was provided in article 17 by constitution of India. Article 18 deal with abolition of titles. Abolition of titles मतलब जब प्री इंडिपेंडेंस इरा के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट कई तरीके के टाइटल्स देती थी, जैसे सर, राय बहादुर, जंग बहादुर. सो लॉ मेकर्स हैड ए थॉट कि अगर ये टाइटल्स आगे कंटिन्यू रहेंगे तो दिस विल एक बाय वर्च्यू ऑफ द ओल्ड लेगेसी पीपल वुड टेंड टू discriminate with the other people who are not carrying such a title. So in order to avoid it they had abolished all the titles. इसमें भी एक्सेप्शन है कि अगर कुछ किसी के पास कोई डॉक्टरी कोई अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बेसिस से अगर कोई टाइटल मिला है तो वो रिटेन कर सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ अ पर्सन इज being offered any such title from outside the country, so he will have to take prior approval from the central government, and after taking the prior approval he can accept or acknowledge the such the title. जैसे आजकल आप देखते हो कि कई बार बाहर की यूनिवर्सिटीज़ डॉक्टरेट, ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि देती हैं, तो फॉर दैट दे विल हैव टू टेक द prior approval from the central government. So this is all about right of equality provided by article 14 to article 18. Now article 19 to 22 deals with right of freedoms. कई freedoms provide की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. आर्टिकल 19 के अंदर 6 तरीके की फ्रीडम्स की बात की गई है, जिसमें से है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. कोई भी आदमी कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी बातों को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है और उसको स्पीच करने का पूरा अधिकार है, प्रोवाइडेड दैट स्पीच इज नॉट एक्टिंग एज ए डिफेमेशन अगेंस्ट एनी पर्सन. तो कोई एब्सोल्यूट तो नहीं हो सकती है, लेकिन दैट इफ अ पर्सन wishes he can speak about, he can give a speech, he has got all the rights available, all the freedom available with him to express himself. Then is the freedom of assembly, assemble peacefully and without arms. अगर आप शांति से बैठ के कहीं पर लोग ग्रुप में बैठे हैं तो या कोई इवन की प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अगर वो पीसफुली कर रहे हैं विदाउट आर्म्स हैं तो इट इज़ देयर राइट टू डू सो. देन राइट और द फ्रीडम टू मेक यूनियंस और एसोसिएशन. ये एक पुराना तरीका रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं वहाँ पर यूनियंस और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैव ऑलवेज बीन फॉर्म्ड so as to protect their rights, so as to ensure that they are getting the all kind of facilities to them, the fellow employees are getting all kind of facilities to them. So this is through the freedom of association and the union provided by article 19 of Constitution of India. Another freedom is freedom to move anywhere in the country throughout the territory of India. तो आप इसी फ्रीडम के को यूज़ करके any person can visit any place in India. He has got all freedom available with him. He can move, he can go to from JNK till Kanyakumari. He is free to move anywhere within the territory of India. Then he has got freedom to practice any profession or to carry any occupation, trade or business, provided that is not illegal or provided that is in line with the law of the country. तो आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हो. आप जॉब करना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, अपना कोई प्रोफेशन करना चाहते हो, whatever you wish you can do so that is the freedom available to a citizen of India as to how to lead his life. Then is the right to reside and settle in any part of India or any territory of India.
इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, आप दिल्ली में रहते हो, इफ़ यू विश यू कैन मूव टू एनी अदर स्टेट. आप जिस भी स्टेट में इंडिया में रहना चाहते हो वहाँ जा सकते हो, वहाँ सेटल हो सकते हो. यू हैव गॉट ऑल फ्रीडम अवेलेबल विद यू, एंड दोज फ्रीडम्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नाउ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 20. Article 20 should be read in along with Article 13, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और फ्यूचर लॉस. तो उसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एंड डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन है. यानी कि जैसे मैंने बताया, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स those laws which were if any act, any deed of a person was not categorized as a crime when it was committed, and subsequently a law has been enacted, and under that act the deed of such kind of deed has become categorized as a crime or as an offense, then the past act of the person will not be punishable, shall not be punished under the new law. So this is the crux of ex post facto law. And then the right of against double jeopardy, एक ही crime के लिए a person cannot be punished twice. The same crime, for same crime a person cannot be punished twice. And the self incrimination means a person cannot be forced upon to accept a crime. He cannot be forced. वो he has got all right to defend himself, and for that the state would give him equal opportunity or the right of natural justice. Article 21 deals with protection of life and personal liberty. Protection of life and personal liberty के अंदर मतलब a person would be free to lead his life and he'll not be to lead his life as per the whims or direction of any other person. Article 21A deals with right of education. इससे पहले भी आर्टिकल ये आर्टिकल 21A was later added into the list of fundamental rights. Earlier this was not a fundamental right, but through the constitutional amendment this right of education was earlier this right of education was a directive principle, but subsequently the status of this directive principle has raised into a fundamental right, and now all the each and every child up to the age of 14 will be having fundamental rights to get education. Article 22 deals with safeguard against prevention detention. Prevention detention का मतलब होता है कि अगर पुलिस को या लॉ मेकिंग लॉ प्रोटेक्टिंग एजेंसी के को अगर किसी तरीके का शक है कि कोई आदमी किसी तरीके कोई क्राइम कर सकता है और वो उसको उसके लिए गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो प्रिवेंशन डिटेंशन का एक फ्रीडम अवेलेबल है. अनलेस दी सच अथॉरिटीज़ हैव रीज़न टू बिलीव कि आप कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाले हो, तो भी only in that case a person can be detained, and उसके अंदर भी he'll have to produce before the magistrate within the stipulated time frame and take the direction from the magistrate about the future course of action. Otherwise a person cannot be detained as such merely on the basis of any apprehension only. So this is a freedom available to a person and in the form of prohibition casted upon upon the state for their act. Then comes the article 23 and 24 deals with right against exploitation. Article 23 deals with prohibition of traffic in human being and forced labors. तो ये एक जैसे अब हमने शुरू में पढ़ा कि किस तरह जो 3 कैटेगरीज थी हमारे फंडामेंटल राइट्स की, तो दिस फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्रोहिबिशन. यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कर्ब करने के लिए this article gives a direction in the form of direction. It prohibits the human trafficking and the forced labor. इसी के साथ साथ आर्टिकल 23 भी क्लब होता है which deals with prohibition of employment of children. So a child below the age of 14 cannot be employed even though
even in the case that child himself or willingly wants to act, wants to work, even in that case he cannot be employed by anybody. So a child below the age of 14 is prohibited to be employed by anybody. Then comes Article 25 to Article 28. These are the freedom of religion. Article 25 deals with freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate the religion. आपके पास फुल फ्रीडम है, आप जो धर्म जो अपनाना चाहते हो, आपको जो धर्म अच्छा लगता है आप वो अपना सकते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप चाहो तो उसके लिए प्रीच कर सकते हो, और अपने धर्म का बढ़ावा प्रचार करने के लिए यू कैन प्रोपेगेट योर रिलीजन. ठीक है, तो आप उसके लिए आपको जिस तरीके से भी जो भी लीगली परमिसिबल वेज के अंदर यू कैन you have got all freedom to adopt any religion as per your conscience. Then comes Article 26, which deals with freedom to associate with any religious denomination and its administration. आप जिस धर्म को भी मानते हो उससे रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके साथ जुड़ना चाहते हो, यू आर फ्री टू बी एसोसिएटेड विद सच अ ऑर्गेनाइजेशन. आप उस और अपने रिलीजन के लिए आप चाहो तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के आप उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हो. आर्टिकल 27 डील्स विद पेमेंट, फ्रीडम टू पे एनी टैक्स और एनी फी फॉर प्रमोशन ऑफ योर पर्टिकुलर रिलीजन. अगर सपोज ऐसे आप किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हो और वहाँ पर आपको आप डोनेशन देना चाहते हो, आप फीस देना चाहते हो, सो एज टू हेल्प दैट ऑर्गेनाइजेशन टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ योर रिलीजन, यू आर फ्री टू डू दैट. कोई वहाँ से कोई टैक्स लगता है, वो कोई फीस आपसे लेते हैं, अगर आप विलिंगली उसको पे करना चाहते हो देन यू कैन पे इट. अगर आप उसको अपनी मर्जी से देना चाहते हो आपको फुल फ्रीडम है. आर्टिकल 28 डील्स विद फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्कशॉप्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. इसमें ये एक फ्रीडम दी है कि अगर आपकी मर्जी है, आप कहीं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो और वहाँ पर कोई रिलीजियस प्रेयर्स होती हैं, आपका अगर मन चाहता है, इफ़ यू आर विलिंगली विशेस टू गो देयर एंड टू अटेंड सच अ वर्शिप्स, यू कैन डू दैट. यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन भी दी गई है कि एनी काइंड ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विच इज़ स्टेट रन और विच इज़ रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ एड गिवन बाय द स्टेट, वहाँ पर अगर कोई स्पेसिफिक कोई वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई ऐसे स्पेसिफिक रिलीजियस कोई प्रेयर वगैरह नहीं होगी और उसमें किसी को भी पार्टिसिपेट करने के लिए nobody would be forced. Then comes next category of our fundamental rights, the last one, Article 29 and 30. These are the cultural and educational rights. So these are the rights which are also known as the right of minorities. राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ के अंदर दो तरीके के राइट्स हैं. आर्टिकल 29 डील्स विद सिटीजन्स हैविंग राइट टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, देयर स्क्रिप्ट्स एंड ऑन देयर कल्चर. उनको जैसे कई आदिवासी इलाके हैं, सो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन दे गिव दिस फंडामेंटल राइट टू सच अ पर्सन कि वो लोग अपनी जो भी उनके सेलिएंट फीचर्स हैं उनकी सोसाइटी के, दे कैन कंजर्व दोज फीचर्स. वो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी स्क्रिप्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट वुड हेल्प देम इन प्रोटेक्टिंग देयर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स, और वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, दे आर फ्री टू फॉलो देयर कल्चर एंड नोबडी वुड इंटरफेयर इन फॉलोइंग सच अ प्रैक्टिस. इसके अलावा नो सिटीजन बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम. अगर कोई एक आदिवासी गांव से आता है और अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करके उसको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन मिल जाता है या मिल सकता है, देन such institution will not discriminate merely on the basis of these reasons, and he should be given equal opportunity to study there. Article 30
जो बोलता है वो कहता है माइनॉरिटीज हैव टू हैव अ राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। अगर किसी आदिवासी इलाके के अंदर वहीं के कुछ लोग मिलके अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं जहाँ पर वो अपने तरीके से एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहते हैं अबाउट देयर ओन रिलीजन, अबाउट देयर कल्चर, अबाउट देयर लैंग्वेज, सो दे आर फ्री टू establish and administer such a institute. Then state will not discriminate on the while granting any aid to such an institute merely on the basis of their constitution or their being a minority institution. They will not be deprived of granting the aid. So this is a prohibition casted upon the state from by the Constitution of India. तो यहाँ तक हमारे मेन फंडामेंटल राइट्स जो हमें प्रोवाइड किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो कैटेगराइज होते हैं। आर्टिकल 30 तक हमने देख लिया। आर्टिकल 31 एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अर्लियर, दिस वाज द फंडामेंटल राइट, द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, but that right has been taken away by the constitutional amendment, the constitution amendment 44. Now comes the article 32 which deals with constitutional remedy. तो फंडामेंटल राइट तो बन गए, कॉन्स्टिट्यूशन ने बना भी दिए, अब उनकी प्रोटेक्शन कैसे होगी, उन अगर कोई उनको वायलेट करता है तो उनको क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं एक कॉमन मैन के पास। तो उसमें पहला क्या है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये गारंटी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि उनके फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल हैं, ठीक है। एंड फंडामेंटल राइट्स किस तरीके से एनफोर्सेबल है, दे आर एनफोर्सेबल बाय द हायर कोर्ट्स ऑफ इंडिया। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का कोई ब्रीच होता है तो दैट पर्सन इज नॉट सपोज टू फॉलो द एंटायर हायरार्की ऑफ जुडिशरी, इंस्टेड दे कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट for their intervention for the protection of their fundamental rights. And such aggrieved person can directly approach the Supreme Court without following the hierarchical system of the judiciary. And provision of locus standi इसमें रिलैक्स किया गया है by way of introduction of public interest litigation. कई बार ऐसा होता है कि किसी के साथ अगर फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं and that person is not aware of his constitutional rights, उसको ये समझ नहीं है कि उसको कोर्ट के थ्रू कोर्ट के पास उसे जाना चाहिए, या कई केसेस के अंदर इफ अ पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ टू अप्रोच द कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इट्स फंडामेंटल राइट, देन एनीबडी कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑन देयर बिहाफ थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉर प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो this public interest litigation has helped in relaxing the locus standi for any person, and such a person can approach the court on behalf of the aggrieved persons. Fundamental rights chapter 3 में part 3 में दिए हैं. Then comes the part 4 which deals with directive principle. Directive principle are different from that of fundamental rights. Directive principle are the goals. These are the basic principle on the basis of which a government would work towards achievement of fundamental rights. एक लॉन्ग टर्म विजन है कि किस तरीके से गवर्नमेंट वुड फंक्शन, क्या क्या फैसिलिटीज वो अपने सिटीजन्स को गवर्नमेंट देगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्या उनको अचीवमेंट करनी है. those acts as these directive principle acts as the guiding principle for the governance of by the government. उनका जो एम है टू प्रोवाइड वेलफेयर टू द सोसाइटी, प्रोवाइड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज विच हैव बीन स्प्रेड इनटू द सोसाइटी. तो वो कैसे अचीव करेंगे, क्या क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए फॉर द गुड गवर्नेंस, दोज हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. और वो ड्यूटी दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर ड्यूटी कास्ट की गई है कि दे शुड अप्लाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाइल फॉर्मुलेटिंग एनी न्यू लॉ. कुछ भी नया लॉ बना रहे हो तो दे शुड कीप इन माइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच हैज़ बीन सेट इन पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया. और सोशल पॉलिसीज़ वगैरह ड्रॉ करने के टाइम भी इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए.
फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गए, ये सारी चीज़ें हमने जो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और क्या राइट्स हमें अवेलेबल हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया ही है. अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्लियरली मैंशन what are the fundamental duties of our of the citizens of this country. आपके राइट्स हैं, वेरी गुड, आपको राइट्स मिले हैं, बट यू शुड अबाइड बाय द फंडामेंटल ड्यूटीज एज ए गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री. लेकिन इसके साथ साथ एक ये फीचर भी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. वो एक आपका एक मॉरल ऑब्लिगेशन है. यू शुड कंप्लाई, यू शुड फुलफिल योर फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन दोज कैन नॉट बी मेड एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. वो आपको रिमाइंड कराती हैं कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, पर वो एनफोर्सेबल नहीं होती. ठीक है. अब हम देखेंगे क्या क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म है जुडिशियल बॉडीज़ के. जैसे जो नॉर्मल जुडिशियल स्ट्रक्चर तो है ही है, आप फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं फॉर एनी ब्रीच, लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से स्पेशल बॉडीज़ एस्टेब्लिश की गई हैं एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी which acts as which works towards the achievement of smooth implementation of fundamental rights and directive principle. तो जो मेन हमारी क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं उसमें से फर्स्ट है जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1973. ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है विच वर्क्स टूवर्ड्स द एनफोर्समेंट और द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स विच हैव बीन provided by the Constitution of India. ये NHRC is headed by a chairman who happens to be the former Chief Justice of India. इसके साथ साथ एक मेंबर होते हैं जो करंट या फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट होते हैं, एंड 2 other members who are having adequate experience and expertise in the field of human rights. NHRC या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो फंक्शन करता है वो बिल्कुल एक सिविल कोर्ट की तरह, उनके पास सारे अधिकार होते हैं, सारे राइट्स अवेलेबल होते हैं. वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अपने आप से किसी भी मैटर के अंदर. इन्वेस्टिगेशन करने के 3 तरीके हैं, या तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज़ के कोई मतलब इनको इंस्ट्रक्ट करे किसी मैटर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए. सुप्रीम कोर्ट उन्हें इंस्ट्रक्ट कर सकता है टू इन्वेस्टिगेट इनटू एनी मैटर. एंड थर्ड इज स्यूमोटो. अगर कोई उनके जिसको आप बोलते हैं संज्ञान में आता है, उनकी नॉलेज में, अगर NHRC की नॉलेज में कोई ऐसा मैटर आता है तो दे कैन स्यूमोटो टेक एन एक्शन एंड दे कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट NHRC हैज़ गॉट राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके किसी भी जो मैटर ऑलरेडी चल रहा है और अगर NHRC को लगता है कि इसमें फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन हो रहा है, सो तो दे कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट टू मेक देम एज ए पार्टी इन दी मैटर, एंड सुप्रीम कोर्ट जनरली एक्सेप्ट सच अ रिक्वेस्ट और वो उनको एक पार्टी उसमें बना दिया जाता है. नेशनल ह्यूमन राइट्स हैव गॉट राइट टू विजिट जेल्स एट ऑफ एनीवेयर सिचुएटेड इन द कंट्री. वहाँ पर जाके वो वहाँ पे जो भी प्रिजनर्स हैं उनको उनके फंडामेंटल राइट्स तो ब्रीच नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर कैसे फॉर्म में उनको रह रहे हैं, क्या उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए एज पर लॉ. सो दे कैन इंस्पेक्ट दी जेल्स एंड दे हैव गॉट राइट्स टू डायरेक्ट द गवर्नमेंट to ensure that the fundamental rights are made available to such a person. इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैन रिक्वेस्ट एनी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू प्रोवाइड देम विद द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर केस. वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग relevant documents which they feel are related with a particular case. इनके पास NHRC के पास को अप्रोच करने के लिए कोई भी आदमी उनको अप्रोच कर सकता है विद अ कंप्लेंट, और वो एक सेट फॉर्मेट है विच इज़ नॉट सो स्पेसिफिक.
उस सेट फॉर्मेट में वो अपनी सारी डिटेल्स देके दे कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर NHRC in case they feel aggrieved with the violation of their fundamental rights. Now, apart from NHRC, there is another commission which is called National Commission of Minorities. This was constitution in 1992, and this works for the protection of fundamental rights available to the minorities. जो माइनॉरिटी कैटेगराइज किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जो माइनॉरिटी कास्ट्स हैं, माइनॉरिटी कास्ट के फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए ऑन द सेम लाइन विद लाइक दैट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, देयर फंक्शन एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप इज द सेम एज दैट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, but their focus is on the protection of fundamental rights of the minorities. Similarly, there is another organization called National Commission for Women, which ensures that fundamental rights are made available to the women and there should not be any discrimination with the women, and they work towards the betterment of the women of the country. Then comes the National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe, like that of National Commission for Minorities, जैसे वो minority के लिए करते हैं. Similarly, National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes is also there, जो Scheduled Caste और Scheduled Tribes के fundamental rights के protection के direction में काम करते हैं, and for they work towards the betterment of their life. So this is all about the human rights in India as per legal studies of class 12th. Thank you.